Hello everyone once again, and let's continue with our numerical session. आज हम मिलेंगे numericals which are based on the enthalpy of formation as well as some numericals based on Hayes law. Okay, so let's see first of all. यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है हमें बोर्ड पे, calculate the standard enthalpy of formation of C2H6 from the following data. आपको दिया है ये रिएक्शन, yes, twice C2H6, that's ethane. It combines with 7 number of moles of oxygen gaseous to produce 4 moles of CO2 and 6 moles of H2O. In this case, delta H naught, I mean standard enthalpy of this reaction is given to you. Its value is minus 3119 kilojoules. And here two values are given. The first value is, yes, enthalpy, I mean standard enthalpy of formation of a CO2 as well as that of H2O is also given over here. तो आपको पता है क्या होता है concept of standard enthalpy of formation. It is defined as, yes, the enthalpy change accompanies when one mole of a substance is formed from its elements. Yes, it is defined as the enthalpy change accompanies the formation of one mole of a substance in its standard state from its elements which are also in their standard state. It is known as, yes, standard enthalpy of formation. So अभी यहां पे देखिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ, यस, enthalpy of formation of reactant. I mean actually वो जो होता है that formula is for the bond enthalpy, लेकिन यहाँ पे ये हमको निकालना है डेल्टा H नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंसेप्ट. तो यहाँ पे आना चाहिए, यस, समेशन ऑफ S M इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ formation of products, yes, minus summation of S n number of delta H naught values of reactants. Yes, is it right? So delta H naught of formation of products and that of the reactant, ये हमें यहाँ पे करना होगा. M is nothing but the stoichiometric coefficients in this case of products here. Similarly here M will be, yes, they are nothing but the stoichiometric coefficients of the reactants. तो चलिए अभी हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. So delta H naught is equal to, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, yes, 4 into delta H naught F of CO2 plus 6 into delta H naught F of H2O minus 2 into delta H naught F of C2H6 plus 7 into delta H naught F of O2 gaseous. अभी ये है जो फॉर्मूला हमें यूज करना होगा इधर, और इनके वैल्यू हमें पता है. नाउ 4 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ CO2 का वैल्यू है माइनस 393.5, यस, किलोजूल्स पर मोल है वो, प्लस 6 इंटू H2 का क्या दिया है वैल्यू, माइनस 285.8. ये आएगा वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, आई मीन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, माइनस 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे C2H6 का वैल्यू हमें निकालना है.
So delta H naught of formation of C2H6 ये हमको निकालने का है, प्लस 7 इंटू क्या आएगा इसका वैल्यू, शायद आपको याद होगा मैंने कहा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे ये O2 जो है ये अनकंबाइंड फॉर्म में है, तो ऐसे में इसका वैल्यू 0 आएगा हमेशा। ओके, सो द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम इटसेल्फ इज ऑलवेज 0, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा 0। सो इस तरीके से डेल्टा H नॉट का वैल्यू क्या दिया है आपको, -3119। ओके, सो हियर ये आ रहा है मेरा वैल्यू -1574.0 माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा ना क्योंकि माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस। ठीक है, yes, the answer will be like this, माइनस ये जो वैल्यू है डेल्टा H नॉट F ऑफ C2H6, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या दिया है आपको -3119, यहां पे क्या आएगा 8, -3288.8, यस, माइनस 2 इंटू डेल्टा H नॉट F ऑफ C2H6 की वैल्यू हमें निकालना है ना, ये है -3119। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, ये जो है मैं इसको लेकर आता हूं इस साइड में, तो ये हो जाएगा ट्वाइस डेल्टा H नॉट F ऑफ C2H6, यस, ये फिर यहाँ पे हम लेकर आएंगे इसको इस तरफ -3288.8 और ये हो गया प्लस 3119। ऑब्वियसली यहाँ पे करना पड़ेगा हमें सब्सट्रैक्शन, सो 3288.8 और ये है 3119.0, 8 minus 0 is 8, 18 minus 9 is 9, here 17, I mean 7 minus 1 is 6, 2 minus 1 is 1. So this answer is, yes, -169.8, but this is the value your choice as delta H naught F of C2H6. Therefore, delta H naught F of C2H6 is equal to -169.8 divided by 2. क्या है वैल्यू यहाँ पे, yes, minus 84.9 आ रहा है मेरा आंसर। इट्स एग्जैक्ट आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, kilojoules per mole. So our answer is yes, डेल्टा H नॉट F ऑफ C2H6 का वैल्यू आया है -84.9 किलोजूल्स पर मोल, यही है हमारा आंसर। आया समझ में? यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम इटसेल्फ विल बी 0। तो अगर ये अनकंबाइंड फॉर्म में है, ये वैल्यू मैंने 0 लिया है, पता है ना आपको। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये आपको मैंने कहा था जब हमने लिया था कंसेप्ट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके रूल्स भी मैंने आपको लिख के दिए थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, काइंडली नोट डाउन दिस प्रॉपर्ली। It's again a same kind of problem given here. Let's solve it here. देखिए, इसमें भी हमें फाइंड करना है what is the standard enthalpy of formation of NH3 gas.
ये अगर इक्वेशन हमको दिया है, then you know that delta H naught is equal to, yes, क्या आएगा, डेल्टा H naught F फॉर अमोनिया गैस, लेकिन यहां का है 2 is the coefficient, so here we have to type here 2 minus, yes, यहां पे क्या आएगा, डेल्टा H naught F of N2 gas plus 3 into delta H naught F of H2 gas. So 2 into NH3 का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, वही तो हमें निकालना है. सो डेल्टा H naught of NH3, yes, and this value is also given to you. This value is minus 92.4. Yes, it's a kilojoules per mole. अभी यहाँ पे देखिए क्या आएगा, डेल्टा H naught F of N2, क्या आएगा इसका वैल्यू. यस, अभी मैंने कहा था आपको द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इटसेल्फ इज 0, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा 0 आएगा इनटू, यहाँ पे भी H2O जो है इसका इन अनकंबाइंड स्टेट, दैट्स व्हाई, सो इसका भी वैल्यू आएगा 0, सो 3 इन ब्रैकेट 0 अगेन, दैट्स व्हाई दिस होल वैल्यू विल बिकम 0. सो 2 इनटू delta H naught F of NH3, and this is equal to minus 92.4. That's why delta H naught F of NH3, ये जो यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई करने के लिए, ये वैल्यू हो जाएगा minus 92.4 divided by 2. So it's a yes, it's a minus 46.2 kilojoules, yes, per mole, and this is the answer. Understand? In this way we have to find out the value of standard enthalpy of formation. Okay, but remember here also the clue is that, yes, enthalpy of formation of the elements from itself is always 0, so that this is the rule applicable here. In this way we have to solve the numericals. उसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया है हमें, लेट्स सी, इट्स अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द हेस लॉ. तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इतना पूरा लिख लो, क्योंकि बोर्ड हमें यहाँ पे पूरा लगेगा, इसीलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. देन वी विल स्टार्ट. Okay, then the next problem is problems based on the Hayes law. देखिए हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स 4 या 5 मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग एज वेल. इन्हें सॉल्व करने का एक तरीका होता है. कैसे? लेट्स सी. Starting with this simple example, okay? Given the following equation, ये आपको इक्वेशन दिए हैं. Calculate the standard enthalpy of the reaction. ये दिया है आपको केमिकल रिएक्शन, और यहां पे आपको डेल्टा H नॉट का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, अगर आप यहां पे देखोगे प्रॉपरली, एक सेकेंड, इफ यू सी दिस प्रॉपरली, आपको ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये इक्वेशन आपको लाना है बाय यूजिंग दिस 2 इक्वेशंस. म्हणजे बघा इथे काय आहे, Fe, जस्ट सर्च की कुठे तुम्हाला दिसतंय Fe आहे ह्या साईडला, ठीक आहे ना, आणि इकडे काय दिसतंय तुम्हाला, इथे आहे Fe2O3.
to put it this way, तो वही यहाँ साइड है. Fe is on the product side and Fe2O3 or is on the, yes, here is on the reactant side. ठीक है. आणि इथे हा आपल्याला नकोय Al2O3. आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा इन इक्वेशंस में ताकि इनसे आपको ये इक्वेशन मिलेगा. दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो एज सी ये Fe दिया है ऑन द रिएक्टेंट साइड और यहां पे ये इस तरह, इसका मतलब हमको इस इक्वेशन 1 को रिवर्स करना पड़ेगा. इक्वेशन 1 जे आहे याला तुम्ही काय करा, रिवर्स करा, उलट करा. रिवर्स केल्यानंतर डेल्टा एच नॉटची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे -847.6. ते मायनस होऊन जाईल प्लस जर इक्वेशन रिवर्स केलं तर. मतलब अगर आपने इस इक्वेशन को रिवर्स किया तो जहां पे दिया है माइनस साइन वो क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा. ठीक है ना. या फिर एक काम करो, हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से करते हैं सब्सट्रैक्ट. जो भी कुछ हम लोग करते हैं ये आपको लिखना जरूरी है. सो नाउ आई विल राइट हियर, यस, दिस इज द सॉल्यूशन हियर. Subtracting the equation 1 from equation 2. ठीक है, क्या मिलेगा, twice aluminium solid 3y2O2 gaseous gives Al2O3. क्या है वो, सॉलिड. मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं डेल्टा एच नॉट और इसको भी लिखता हूं डेल्टा एच नॉट. ये है 1 और ये है 2, डेल्टा एच नॉट 2. इट्स ओनली फॉर कन्वीनियंस पर्पस. तो चलो हमने यहां पे लिखा है इक्वेशन नंबर 2. अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इसमें से करेंगे माइनस. तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस एल्यूमिनियम सॉलिड माइनस Fe2O3 solid gives minus twice Fe solid minus Al2O3. क्या दिया है वो है सॉरी, मतलब पूरे के पूरे इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है, इसमें से किया है माइनस. तो मैंने यहाँ पे हर जगह पे माइनस साइन यहाँ पे लिख दिया है. क्या होगा देखिए, अभी इसमें एल्यूमिनियम जो कि लिया है यहाँ पे ट्वाइस एल्यूमिनियम माइनस ट्वाइस यहाँ पे हो जाएगा कट. और कुछ है यहाँ पे Al2O3 माइनस ये भी यहाँ पे हो जाएगा कट. क्या बचेगा, अभी जरा देखिए प्रॉपरली. ये है माइनस ट्वाइस Fe, ये इस तरफ है इसलिए माइनस है. अगर हमें इसको इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस. सो हियर आई विल राइट हियर ट्वाइस Fe सॉलिड प्लस क्या बचा है यहाँ पे 3y2O2 गैसियस. अभी और एक बात, ये है माइनस Fe2O3 लेकिन ये है ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट. अगर हम लाएंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा वो प्लस. सो इट्स Fe2O3 सॉलिड, राइट. ये लिखा है मैंने यहाँ पे इक्वेशन. अभी जो इक्वेशन चाहिए था यह हमें मिल गया. जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, नो दैट डेल्टा एच नॉट क्या आएगा अभी हमारा, यस, डेल्टा H2 नॉट माइनस डेल्टा H1 नॉट माइनस 1670 माइनस, यस, माइनस 847.6. इक्वेशन 1 को हमने 2 से किया था सब्सट्रैक्ट. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है माइनस 1670 प्लस 847.6. लेट्स डू दिस सब्सट्रैक्शन हियर प्रॉपरली. 847.6 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4. 9 माइनस 7 2. हियर विल बी 6 minus 4, yes, 2. Here will be, yes, 16 minus 8 will be 8. ये आंसर आ रहा है मेरा 822.4.
ये आ रहा है -822.4. लेट्स चेक इट आउट. इस एग्जैक्ट आंसर गिवन इन द टेक्स्ट. डेल्टा एच नॉट का वैल्यू है -822.4 kilojoules. Okay, so in this way you have to solve the numericals. This is just a simple one. We have to see some more numericals. Write down this first of all properly. Then the next problem, yes, it is also based on the Hayes law. Find out the heat of formation of ethyl alcohol from the following data. वापस आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हैं और ये तीनों इक्वेशंस के डेल्टा एच के भी यहाँ पे वैल्यू आपको दिए हैं. डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 वैल्यूज आर गिवन. ओके, फॉर द रिएक्शन नंबर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. अभी हमें फाइंड करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. तो इथाइल अल्कोहल जो यहाँ पे है, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन तो दिया नहीं है इन्होंने, तो हमको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा. सो हियर वी हैव टू राइट लाइक दिस. द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज C2H5OH लिक्विड. ये आपको मिलेगा, राइट. सो कार्बन सॉलिड, यहां पे आएगा कार्बन, बाद में आएगा हाइड्रोजन और बाद में आएगा ऑक्सीजन. सो हियर यू नो दैट हाइड्रोजन इज डायटोमिक, ऑक्सीजन इज अगेन डायटोमिक, एंड बोथ आर प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट एंड कार्बन इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट. अभी यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 5 और 1 हो गए 6, तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा. एंड फॉर ऑक्सीजन here only 1, here also given is O2. तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2, और यहाँ पे कार्बन 2 है, तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, राइट. ओके, नाउ ये है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन. अभी जो इक्वेशन हमने देखा है, वापस देखो, इसको चेक करो एक बार कि हमने लिखा हुआ इक्वेशन सही है या नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. तो यहाँ पे 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन है, यहाँ पे 5 और 1 हो गया 6, इधर भी है 3 to the 6. ऑक्सीजन का ये 2 हो जाएगा कट, तो यहाँ पे बचेगा 1 ऑक्सीजन. सिमिलरली हियर आल्सो प्रेजेंस ऑफ 1 ऑक्सीजन आइटम. अभी आपको देखना है कि यहाँ पे कार्बन कहाँ दिख रहा है आपको. ये मुझे दिखाई दे रहा है पहले इक्वेशन में, लेकिन यहां तो है 2, यहां तो 2 नहीं है. आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है बाय यूजिंग हेस लॉ thermochemical equation can be multiplied, yes, divided or added as well as subtracted just like an algebraic equation. अभी मुझे जरूरत है यहाँ पे 2 की, मैं एक काम करूंगा, इस इक्वेशन 1 को मैं 2 से करूंगा मल्टीप्लाई. ठीक है. अभी यहाँ पे देखिए H2 दिया है, लेकिन यहाँ तो 3 है, इधर 3 नहीं है. मुझे इस इक्वेशन को 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे थ्राइस H2, जो यहाँ पे H2 है. और एक चीज, C2H5OH कहां पे लिख रहा है आपको, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, लेकिन कहां पे है वो है ऑन द रिएक्टेंट साइड. जो मुझे कहां चाहिए, ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को रिवर्स करो, या फिर इस जो भी आप यहां पे ऐड करोगे उसमें से इक्वेशन 3 को कर दो माइनस. जो हम लोग यहां पे करेंगे ये आपको यहां पे लिखना पड़ेगा. मीन्स हियर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1/2 and equation 2/3, adding them and subtracting equation 3 from
देयर एडिशन। तो चलो हम यहाँ पे पहले करेंगे मल्टीप्लाई पहले इक्वेशन को, जो आएगा ट्वाइस कार्बन सॉलिड ट्वाइस ऑक्सीजन गैसियस गिव्स ट्वाइस CO2 गैसियस। ये डेल्टा एच की वैल्यू हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे उसको मत डिस्टर्ब करना। आप यहाँ पे बस कितना लिखो, एन में हम उसको कर लेंगे मल्टीप्लाई करना है तो, ठीक है। यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को 2 से किया मल्टीप्लाई, अब इस इक्वेशन को हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा यहाँ पे थ्राइस H2 गैसियस 3/2 O2 गैसियस थ्राइस H2O लिक्विड, ठीक है। चलो इन दोनों पहले ऐड करते हैं हम लोग, क्या आएगा ट्वाइस कार्बन सॉलिड थ्राइस H2 गैसियस 2 + 3/2, यस 2 + 3/2 क्या आएगा, आई थिंक इट्स 7/2 O2 गैसियस गिव्स ट्वाइस CO2 गैसियस प्लस थ्राइस H2O लिक्विड। ये हमने दोनों का ऐड किया। अभी हमको इस इक्वेशन को करने का है सब्सट्रैक्ट इसमें से, तो पहले मैं काम करता हूं, चाहे तो C2H5OH है लिक्विड प्लस 3/2 O2 इज गैसियस ट्वाइस CO2 गैसियस प्लस थ्राइस H2O लिक्विड। देखिए हमें करने का है सब्सट्रैक्ट इसको, तो इधर आएगा यस, यहां हो जाएगा माइनस साइन, इधर भी माइनस माइनस एंड माइनस, CO2 हो जाएगा कट, 3H2O माइनस 3H2 हो जाएगा कट, क्या बचता है लिखते हैं चलो, ट्वाइस कार्बन सॉलिड प्लस थ्राइस H2 गैसियस, यस 7/2 - 3, यस क्या आएगा, आई थिंक इट्स देखो 7/2 - 3 अगर हम करेंगे तो आई थिंक इट्स 1/2 O2 हो जाएगा गैसियस। ध्यान से देखिएगा, इसमें से हमने इसको किया माइनस, यहां माइनस साइन है लेकिन ये है ऑन द साइड ऑफ रिएक्टर, अगर हमने इसको इधर लाया और प्रोडक्ट साइड तो हो जाएगा प्लस, सो C2H5OH ये है लिक्विड। एंड नाउ चेक आउट, जो हमें चाहिए था इक्वेशन, क्या हमें एग्जैक्टली वही इक्वेशन मिला है? जी हाँ, हमें वही इक्वेशन मिला है यहाँ पे। अगर हम एक काम करेंगे, चलो फाइंड करते हैं डेल्टा H का वैल्यू, डेल्टा H0, यस 2 into डेल्टा H0 1 प्लस 3 into डेल्टा H0 2 माइनस, यस क्या करना पड़ेगा, डेल्टा H0 3। चलो करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या आता है इसका वैल्यू, सो 2 इंटू माइनस 395.38 प्लस 3 इंटू माइनस 285.76 माइनस 1366.9, ठीक है यार। ये अगर आप करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये आएगा -790.76 माइनस ये आ रहा है, ठीक है। इसमें से ये हो जाएगा प्लस 1366.9। ये अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, वो आता है -281.13। हियर द आंसर इज -281.13 किलो जूल। आप फिर भी चेक करके देखिए वही आंसर आता है या नहीं है, ठीक है। नोट डाउन दिस।
प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम इज वेरी इजी इफ इट्स प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आंसर आना चाहिए कितना, -281.13 किलो जूल इज आवर आंसर। चेक आउट। जितने भी दिए हैं न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक में वो आप सॉल्व करते हैं, आई मीन करते हो घर पे, ऐसे में होप करता हूं। नोट डाउन दिस थिंग। अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो गिवन हियर। ठीक है, हेस लॉ का प्रॉब्लम ऐसा होता है, मेनली अगर आपने इस इक्वेशन को देख लिया, क्वेश्चन को देख लिया, तो आप उसको गेस कर सकते हो कि उसका आंसर क्या आएगा। जब कभी आपको ये आएगा, मतलब मोस्टली जब भी आता है ऐसे क्वेश्चंस, तो वो इक्वेशन बनता कैसे है अगर आपको मालूम चल गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन को 2 से या फिर 3 से, फिर दोनों को हमने ऐड किया। दोनों को ऐड करने के बाद उसमें उनकी एडिशन में से हमने इक्वेशन 3 को किया था माइनस, यह मालूम चल गया। तो आपको जब आएगा ये किसी भी एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, तो जस्ट राइट डाउन एंड जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। अंडरस्टैंड? अभी देखिए, ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड एसिटिक एसिड इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 gaseous H2O liquid is, yes, given that the heat of combustion of liquid CH3COOH is। आपको यहां पे एक भी इक्वेशन में दिया है, हर एक इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं, इन्होंने बोला है आपको कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड एसिटिक एसिड, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो पहले हम देखते हैं CO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे आएगा। CO2 गैसियस, इसमें है कार्बन जो कि है सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, बाद में फिर ऑक्सीजन है वो है गैसियस फॉर्म में। देखिए, इस तरफ आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है, जो भी कुछ चेंज करोगे वो आपको करना है ऑन द रिएक्टेंट साइड व्हाइल राइटिंग द इक्वेशंस फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देन इसके लिए वैल्यू जो दिया है आपको डेल्टा H नॉट का, यस, वो है -395 किलो जूल्स पर मोल, राइट। H2O का भी दिया है फॉर्मेशन, H2O इज इन लिक्विड स्टेट, डेल्टा H नॉट या फिर डेल्टा H2 -286 किलो जूल्स। सो H2 is gaseous, O2 is also in gaseous state। तो मैंने बोला इस तरफ कोई भी बदलाव मत करना, यहाँ पे O हमें एक ही चाहिए था, यहाँ पे O2 है तो मैं इसे 1/2 O2 लिखता हूं। और इन्होंने दिया है given that the heat of combustion of CH3COOH का जो कि है लिक्विड, इन्होंने बोला है वैसे कंबशन करना है, कंबशन रिएक्शन मध्ये अच्छा ठेवा, कंबशन करा हायड्रोकार्बनचं तुम्हाला मिळणार नेहमी यस H2O and CO2 compulsory, so CO2 gaseous plus H2O liquid, 1 plus 1 is 2, 3 plus 1 is 4। so यहां पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ये है कार्बन बैलेंस और ये है यहां पे Hb बैलेंस, यस। देन देखिए कार्बन तो बैलेंस हो गए, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। H देखिए यहाँ पे ये 3 और ये है 4, 2 2s are 4 here also। Now let's check the oxygen, 2 2s are 4 plus 2 6, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 2 लिखता हूँ। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिएक्शन, मतलब ये दिया है आपको डेल्टा H3 की वैल्यू वो है -870 किलो जूल्स।
देखिए तीनों के तीनों इक्वेशन हमें एक भी इक्वेशन दिया गया नहीं है, हमने तीनों इक्वेशन यहाँ पे खुद लिखे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने एक लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड हाउ टू राइट द रिएक्शन आल्सो। तो ठीक है, अभी ये है गिवन रिएक्शंस। अभी हमें जिस रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, किसका है वो, लिक्विड एसिटिक एसिड का। सो आई विल राइट हियर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, देखिए ये है कार्बन सॉलिड हाइड्रोजन गैसियस ऑक्सीजन gaseous, 3 plus 1 is 4, so here twice, कार्बन हो गए यहाँ पे twice, ऑक्सीजन यहाँ पे है। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H का वैल्यू हमें फाइंड करना है। आप बताओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या करना होगा हमें इन तीन इक्वेशंस को। पहले इक्वेशन को यस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1 बाय 2। दूसरी इक्वेशन को ये दिया है यहाँ पे H2, इसको भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, फिर दोनों को हमें ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद देखिए वापस CH3COOH है रिएक्टेंट साइड में, हमें चाहिए वो प्रोडक्ट साइड में, इसीलिए इस इक्वेशन को आपको करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट, या फिर इसको करो रिवर्स और फिर वापस करो ऐड, चलेगा कुछ भी, ठीक है। तो यहां पे मैं करता हूं काम, यस, मल्टीप्लाइंग, सॉरी, मल्टीप्लाइंग equation 1 by 2 and 2 by 2, adding them and subtracting equation 3 from their addition. So twice carbon solid, twice oxygen gaseous gives twice CO2 gaseous, twice H2 gaseous, yes, 2 into 1 by 2 is only O2, O2 gaseous, right, gives twice H2O liquid। इनको हम ऐड करेंगे, सो twice कार्बन सॉलिड, twice हाइड्रोजन गैसियस, yes, 2 plus 1 is 3, twice O2 gaseous gives twice CO2 gaseous, twice H2O liquid। इसमें से इक्वेशन ये जो दिया है CH3 COOH liquid plus 2O2 gaseous, 2 CO2 gaseous plus 2 H2O liquid, ये करना है, माइनस करना है ना हमें, तो ये है माइनस 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 माइनस, तो CO2 CO2 कट, H2O यहाँ पे हो जाएगा कट, जो बचता है वो है ट्वाइस कार्बन सॉलिड, ट्वाइस हाइड्रोजन गैसियस, 3 by 2 O2 minus 2, yes, only O2 सिंगल, राइट। और ये CH3COOH ये माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस, सो CH3COOH लिक्विड। देखिए जो हमें चाहिए था, क्या हमें वो इक्वेशन मिला है, यस। तो जो हमने यहाँ पे किया है डेल्टा H इज इक्वल टू, क्या किया था हमने, डेल्टा H1 की वैल्यू को 2 से करो मल्टीप्लाई,
डेल्टा H2 की वैल्यू को भी 2 से करो मल्टीप्लाई एंड इसमें से डेल्टा H3 का वैल्यू, सो -395 into 2 plus yes minus 286 into 2 delta H value minus 870 yes minus 790 yes minus 572 ये हो जाएगा प्लस 870 क्या आएगा इधर लिखूं मैं ऊपर क्या आएगा एडिशन yes see I get with the green pen here 2 plus 0 is 2 13 is minus 1362 plus 870 so 1362 and 870 2 minus 0 is 2 9 it's a 492 exactly minus आएगा यहाँ पे आंसर इज minus 492 किलो जूल चेक आउट दिस यही आपका आंसर आना चाहिए अंडरस्टैंड सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द बेस्ड ऑन द हेयर्स लॉ स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो ओके न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी है जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट ठीक है ना अपने आप में आ जाएगा वो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करने के बाद आएगा लेकिन ठीक है नोट डाउन दिस आल्सो answer is minus 492 it's a correct answer main thing is that how to get this equation and very important numericals Gauss law के numericals हमेशा आते हैं 4 मार्क्स के लिए आएंगे आपको ठीक है ना फिर अभी है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज कंसेप्ट देखिए क्या दिया है प्रॉब्लम में कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के लिए अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला है इसका डेल्टा एच नॉट I mean minus delta H naught ठीक है ना डिवाइड बाय T अभी यहां पे डेल्टा H naught का जो वैल्यू दिया है वो है किलो जूल्स पर मोल में and now they are asking here calculate entropy change in surrounding when 1 mole of H2O is formed under standard condition standard मतलब क्या होता है I told you when the temperature is equal to 25 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होगा वो 298 केल्विन सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच यू नो दैट क्या दिया है वैल्यू द वैल्यू इज माइनस 286 राइट सो वैल्यू इज गिवन इज माइनस 286 तो ये वैल्यू है माइनस इन ब्रैकेट माइनस 286 ये किलो जूल्स में है हमें जूल में करना पड़ेगा तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 298 माइनस इंटू बाय साइड क्या हो जाएगा प्लस सो 286 1 2 3 zeros डिवाइड बाय 298 यस क्या है इसका वैल्यू इफ यू डू विद द लॉग बुक आंसर शुड बी 959.73 959.73 yes the unit will be joules per Kelvin per mole. This is the value of delta S surrounding. इस तरीके से the numericals are easy, very easy. We have to see some more numericals. But in the
next lecture. Maybe in the next lecture we will finish with the numericals section of this chapter. Okay, अभी भी मतलब गिब्स एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बाकी है और एंट्रोपी के न्यूमेरिकल्स हम कुछ और सॉल्व करेंगे। और इसके बाद अगर आपको लगता है कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहते हो तो मुझे भेज दीजिए, हम वहां पे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि actually if the duration of the video if it increases then it takes so much time for uploading। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज कीप ऑन स्टडीइंग एट होम। ठीक है।